now the time has come. Now the time has come for all of you to come together. And what you can do is that you need to document your ideas. You need to document your work, and you need to make yourself heard in the right place. So there should be an outcome of this conference, a positive outcome of this conference. And whatever decisions are taken, whatever common points all the youth ambassadors agree upon, they should be documented, and the message should be taken forward to the government. Then and then only changes will come about. It is futile just discussing it. We need to document it. Documentation is very, very important. Every conference ends up just being a conference because the message is never carried forward. We don't want Kalam Youth Leadership Conference to end in that manner. We want to be seen and we want to be heard also. So all of you come together, work together, think together, bring your ideas together, document your ideas, and then take it forward to the next level and make yourself really, really the great social heroes that you truly are. Again, I say, I salute you. You are doing tremendous work, and you are all responsible for transforming Bihar into a role model for all other states to follow in the days, the weeks, the months, and the years forward. Let everyone point out, let us follow Bihar, the youths of Bihar. They are doing tremendous work. So we should also strive to be like the youths of Bihar. All of you belonging to the different districts, 38 districts, doing amazing work, become a role model for all youths around the world, just so that they are also inspired, they are also motivated to do similar work. This will be your tribute towards nation building in the 75th year of our national independence. That's all. Jai Hind. Jai Bharat Mata. Sikanji. Thank you very much, ma'am. And I think ये जो बातें हैं कहीं ना कहीं तमाम यूथ्स के माइंड को सिर्फ मैं कहूँ कि एक ओपन अप करने के लिए है, तो ये पर्याप्त होगा कहना। लेकिन इन तमाम परिस्थिति के बीच सबसे बड़ी अब टास्क तो ये हो गई कि जब हम एक ग्लोबल पैनोरमा में अगर तमाम यूथ्स की अगर रोल मॉडल बनने की तरफ अगर कदम बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में अब अगला स्टेप क्या हो। हालांकि मैम इस बात का बखूबी जिक्र की कि जो आपके आइडियाज हैं, अब उन आइडियाज को जो है डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है, अब लिखने की जरूरत है, उसे दिखाने की जरूरत है। ऐसे में अब सवाल हो जाता है कि जब हम तमाम लोग कलाम यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस को लेकर जुड़ रहे हैं, 2-3 दिन का मौका होगा, और उसमें भी हालांकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि अर्चना मैम 2 दिन के लिए इस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ होंगी। तो ऐसे में इस 2 दिन के बीच में ही इस डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट भी किया जाना है, तमाम यूथ तक मैसेज भी लेकर जाना है। लेकिन अब सवाल है कि अब करें तो कैसे करें। हम तमाम लोग तमाम युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बनने की दिशा में कदम तो बढ़ा दिए हैं, अपने आइडियाज को डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी कदम बढ़ा दिए हैं। तो अब सवाल है कि इसकी शुरुआत हो तो कैसे हो। सर मैं चाहूंगा कि सेशन को और डेप्थ में ले चलने की तरफ हम रुक करें और सीधे इनिशिएटिव की बात करें। Now, what can be done actually, because everyone, all the youths are working in different areas. So there should be panel discussion in all these different areas. There should be a leader appointed to take forward the panel discussions. And the outcome of the panel discussion should be documented. And on the final day, it should be summarized. And then the whole document can be presented at the valedictory function. And after that, it needs to be recorded properly and sent forward to the government level. So there should be a panel discussions. The pros and cons need to be discussed. So we need to first of all categorize the people according to the area they're working in. Say for instance, there are many people working in the educational area. So they can be clubbed together. There should be a panel discussion in that area. There can be one team leader for that.
many new ideas will crop up. Maybe someone is working in the educational sector in one particular district, but he or she is working from his or her perspective, or is not aware of many new ideas which has already been implemented in other places. So when you share your ideas, you come to know what new ideas can be implemented in your area also for betterment of your work. So in this way, there'll be an exchange. The others will be listening. There'll be the main people, the leaders, the social leaders, the awardees who will be taking the active part in this panel discussions, education, environment, social activism, entrepreneurship. And so in this way, there'll be many different levels of discussions. And then the team leader of that particular panel will make the presentation. They'll be given a fixed time to discuss amongst themselves, and they will be presenting it at the end of it. And in this way, all will come together. Ultimately, on the last day, during the valedictory, this will be compiled. It should be compiled. It should be brought together, compiled, and then presented. And then ultimately, the whole thing will be sent off as the outcome of this Kalam Youth Leadership Conference. And these are the suggestions which has come forward from the youths hailing from different parts of not just Bihar, not just India, from other parts of the world also, because it's a global conference. And definitely people will pay heed. Definitely people will pay heed. They will be bound to pay heed to what the youths are saying, what suggestions have come forward, what are the outcomes of the conference, what new ideas they are suggesting for implementations. Even governments are open to ideas. It's not that they have blocked their minds. It's not that they are not willing to hear. They are willing to hear, but they're looking for innovative ideas also. They want the youths also to come forward. So let us support them. Let us help them. Let us take that first step forward and see what happens. Over to you, Siken. All right. थैंक यू वेरी मच अर्चना मैम। ये तमाम बातें कहीं ना कहीं तमाम लोगों को एक गाइडलाइंस तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन अब ऐसे में मुन्ना सर से सीधा रूबरू होने का वक्त हो चला है। वो इस वक्त क्या कुछ इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेके सजेस्ट करेंगे, उनकी बातों को सुनते हैं। ओवर टू यू मुन्ना सर। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि जितने लोग हम मौजूद हैं यहाँ पे, सारे लोगों के दिमाग में ये बैठ जा चुकी होगी कि हमको करना क्या है। चूंकि आप सब अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, बस थोड़ा सा मैं एक बार रिपीट समराइज कर देना चाहता हूँ ताकि हम लोग आगे बढ़े। कार्यक्रम को भी समझना है। जो 3 दिन का ये कार्यक्रम है, आप सबकी भागीदारी किस रूप में होगी, कैसे आप लोग योगदान करेंगे, मैम ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बता दिया है। क्योंकि आप जिस फील्ड में काम करते हैं, इम्पोर्टेंट हो चला है कि जो बातें हैं वो बातें किस संदर्भ में हमें लेनी है। तमाम लोग अलग अलग सेक्टर से काम कर रहे हैं। तमाम लोगों को अपने आइडियाज को बेस्ट वे में धरातल पे रखने के लिए, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आप अपने काम को अच्छे नहीं कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे कर रहे हैं। यही वजह है कि हम सब लोग इस वक्त एकजुट हैं। तो ऐसे में अब उन आइडियाज को एक नेशनल फ्रेम पे रखने के लिए हमें किस तरह की आइडियाज को और लिखने की जरूरत है, प्लान करने की जरूरत है, किन लोगों को सपोर्ट में लेने की जरूरत है। तो सबसे पहला चीज तो ये है कि हम अपने आइडियाज को बेटर वे में डॉक्यूमेंट में आज के आज तैयार करना शुरू कर दें। उसके बाद डेफिनेटली कलाम यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के उस मंच पे हम सभी के पास टाइम होगा। जैसा कि मैम खुद कह रही है कि सबसे पहला जो हमें टास्क करना है वो पैनल डिस्कशन का होगा। हो सकता है कि आपके आइडियाज बहुत कॉमन हो, वहां पे जब आप रखेंगे तो मालूम चलेगा कि इन आइडियाज की जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके आइडियाज इतने यूनिक हो कि जब तमाम लोग सुने तो लगे कि नहीं, ये आइडियाज पे तो इस वक्त काम करने की जरूरत है। तो ऐसे में उन आइडियाज को जो है पॉइंट के तौर पे लिखा जाएगा, और फिर जब हम आगे की ओर रुख करेंगे तो फाइनल अगर हम कहते हैं कि 38 लोग हैं, फाइनल डिपार्टमेंट के लिए एक अपना मिशन तैयार करेंगे।
और ये मिशन मुझे लगता है कि सिर्फ 1 साल के लिए है। मतलब ये कि 1 साल के अंदर भी उन आइडियाज़ पे हमें काम करने हैं और वो रिज़ल्ट भी देखने हैं। हम सिर्फ बातें नहीं करने जा रहे हैं। तो एक समय का फ्रेम होगा, उस फ्रेम में तमाम लोग जब अपने-अपने कंट्रीब्यूशन देंगे तो वाक़ई मतलब वो बदलाव को देखना भी हमारे लिए दिलचस्प होने जा रहा है। अगर मुन्ना सर इस बीच अगर हमें जॉइन कर गए तो मैं चाहूँगा कि बिना समय गँवाए सीधे सर के पास चलेंगे बिल्कुल और सर, क्या बिल्कुल। कुछ वो अब हमसे शेयर करना चाहते हैं, उस पे अब हम बात करेंगे। सबसे पहले तो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं या बाहर निकल जा रहे हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। एक चीज तो है कि सारे लोग को दिमाग में बैठ जा चुका है कि हमको अपनी योगदान देना है, अपने आइडियाज से। आपके पास मॉडल है किसी भी क्षेत्र में तो आपको बनाना है, और ये डॉक्यूमेंटेशन जब होगा तो नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी कि आपके जिले के जो डीएम है, डीएम के पास भी ये फ्रेमवर्क जाएंगे कि कैसे हम अपने उस जिले को संवार सकते हैं। जिला के बाद आपके स्टेट के पास जाएगा, सीओ में, पीओ में, और यूएनए के पास भी जाएगी, ताकि हम लोग इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आउटपुट आया क्या चीज और किस ढंग से अगर युवाओं को अगर इसमें जोड़े तो समाज को, अपने राज्य को और राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं, पीस एंड प्रोस्पेरिटी ला सकते हैं। तो ये 3 दिन का आउटपुट होगा, जिसमें आपकी एक अहम मुन्ना भूमिका सर होगी। का पिक्चर एक नहीं आ और रहा चीज है। मैं बता देना चाहता हूं कि आप यहाँ पे 2 दिन के लिए, क्योंकि फर्स्ट डे तो ऑनर कर देंगे, सेकेंड डे आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। तो सेकेंड डे के लिए भी आप सेकेंड डे, उसके बाद मीटिंग ये डिस्कशन हो जाएगी, पॉइंट हो जाएगी, उसके बाद आप जा सकते हैं। तो फर्स्ट 27 और 28 को दिमाग में रखना है, आप सबको उपस्थित रहना है। और मैं थोड़ा कार्यक्रम के बारे में बता देता हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में आ जाए। और सबसे बड़ी बात है कि आप सब एक हमारे इस कार्यक्रम के बहुत ही बड़े अट्रैक्शन पॉइंट है, जो आप इसको सफल बना सकते हैं आप अपने योगदान से। तो KYLC कलाम यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस से चौथा वर्जन है, चौथी बार हम लोग कर रहे हैं इस नाम से। इससे पहले हम लोग करते थे कलाम को सलाम। 2016 से लगातार ये कार्यक्रम हो रही है। उससे पहले होता था जज्बा देश सेवा का, जो कलाम जी को लेकर के यही कार्यक्रम था। ये तीन तरीके से हो गया। एक कलाम सर के मैंने डेथ से पहले, उसके बाद कलाम को सलाम। अब भी 2019 से हम लोग कर रहे हैं कलाम यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, जो 2 साल के बाद हम लोग वर्चुअल जुड़े थे। अपनी बार पहली बार 2 साल के बाद हम लोग फिजिकली जुड़ने जा रहे हैं। तो ये कोविड काल में क्या हुआ क्या नहीं, आप सब परिचित है, पूरा दुनिया देखा है तमाशा लॉकडाउन और कोरोना का। तो एक बहुत बड़ा मौका है अपने युवाओं को इकट्ठा करके एक पॉजिटिव वाइब्रेशन करने का, मोटिवेशन क्रिएट करने का। आप जहाँ पे हैं वहीं से शुरुआत हो, आपसे शुरुआत हो, हमसे शुरुआत हो, पॉजिटिविटी आएगी। तो इस उद्देश्य को लेकर के लिसेंट भी मुन्ना सर किया गया है। अरे जी म्यूट रखिए, अभी बोलना नहीं है, प्लीज सुन लीजिए पहले। तो ये एक्चुअली हम लोग और यूथ पॉलिसी का निर्माण भी सबसे बड़ा आउटपुट इसका यही होगा। नहीं तो 3 दिन तो आएंगे, फोटो शोटो होगा, अवार्ड मिलेगा, फोटो शोटो, लेकिन वो क्या हुआ, एक आयाम जुड़ा। लेकिन अगर आउटपुट अगर कहे तो हमारा वो यूथ पॉलिसी होगा, जिसका हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार बता देता हूँ, ताकि आप लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए और पूरी तरह से कॉन्फ्रेंस मूड में आ जाए कि नहीं अब तो ज्वाइन करना ही करना है। अपने साथ साथ और लोगों को भी मोटिवेट करना है, जो लोग सक्षम है और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आज के युवा कल के नेता है, इसमें अगर कोई शक नहीं है। और ये ऑब्जेक्टिव को लेकर के हम लोग इस कार्यक्रम का संयोजन किए हैं और हम सब मिलने जा रहे हैं। इतने युवाओं का जो गैदरिंग करने के पीछे उद्देश्य है, यही है कि इन युवाओं को कल के लिए तैयार करना है। और ये जो यूथ पॉलिसी है 1 साल के लिए निर्माण हो रही है, जिसमें लगातार आप लोगों का योगदान जो है ना आवश्यक है। ऑब्जेक्टिव ये तो मैं बता दिया। आगे मैं आता हूँ, डेट 27 को क्या क्या होगा वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि 27, 28, 29 3 दिन का यह कार्यक्रम है। 27 को जैसा आपका रजिस्ट्रेशन होगा 10 से 12, टाइमिंग वैसे ही रहेगी। आपको उसका शेड्यूल भी मिल जाएगा, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ मिल जाएगा। इनॉग्रेशन, अवार्ड सेरेमनी, रेड कारपेट इंटरव्यू और टीम फॉर्मेशन, नेटवर्किंग, ग्लोबल नेटवर्किंग सेशन होगा डिनर के साथ, जो आप सबके बीच में किया जाएगा। और ये लगातार
पूरे दिन भर का एक कार्यक्रम है। इनॉग्रेशन के होने के साथ साथ आप सबका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी होगा, वहाँ मीडिया रहेगी, शिखर शेखर सर का बियॉन्ड द थर्ड आई पूरी तरह से वहाँ मौजूद रहेगी, तो आप सबका इंटरव्यू लेकर के पूरी तरह से आगे बढ़ाएगी, ताकि आपने जो किया है दुनिया को जानना चाहिए। इसलिए जरूरी है रेड कारपेट पे सोशल हीरो, बार बार मैम कह रही है, तो सिर्फ फिल्मी हीरो को रेड कारपेट मिलते आई है, हमारे सोशल हीरो को क्यों नहीं? ये व्यवस्था इसमें की गई है ताकि आपको भी ये मौका मिले और हम महसूस करें कि रियल हीरो हम ही है। सेकेंड है वास्तविक कल्चर इवेंट हो सकते हैं, टेक्निकल सेशन जो स्पेशली ग्रुप डिस्कशन, पैनल डिस्कशन मैम बोल रही थी, ये होंगे और इसके जरिए ये आउटपुट निकाली जाएगी। अलग अलग क्लाइमेट चेंज पे एक अलग पैनल डिस्कशन होगी, एजुकेशन पे एक अलग होगी, हेल्थ पे अलग होगी, तो उसमें एक टीम होगी जो मैम ने एकदम स्पष्ट तरीके से एक्सप्लेन कर दी है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। और सेकेंड डे वैलिडेटरी सेशन हम लोग कर लेंगे, ऐसे थर्ड डे भी रखा हूँ, लेकिन सेकेंड डे टेक्निकल सेशन का हम लोग क्लोजिंग सेरेमनी कर लेंगे और कुछ अवार्ड सेरेमनी होंगे सेकेंड डे भी। और उसमें जो बेस्ट स्पीकर है, बेस्ट पार्टिसिपेंट है, ये सारे अवार्ड उसमें दिए जाएंगे। जिनका बहुत बेहतर प्रेजेंटेशन होगा, बिल्कुल वहां जूरी होगी, एक टीम होगी जो ऑब्जर्व करती रहेगी कि कंटेंट कैसा है, आपका मॉडल कैसा है, कितना अप्लीकेबल है, सस्टेनेबल है, इस सब का जज उसको इवेल्युएट करेंगे और मार्किंग करेंगे और वहां पे अवार्ड भी देंगे उन सारे लोगों को। 29 जुलाई को साइट सीइंग है, स्पेशली हम लोग नालंदा जाएंगे, जो खंडहर है वहां विजिट करेंगे। पीस प्रोस्पेरिटी पे हम लोग सेशन होगी, रनिंग व्हील पे भी होगा, वहां पे ओपन सेशन भी होगी, फीडबैक होगा, खाना पीना वहीं पे होगी, लंच पूरा सब शाम तक आएंगे हम लोग वहां पे। और फिर उसके बाद सबसे विदा ले लेंगे। यानी वैलिडिटी सेशन हम लोग लास्ट में वहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन 28 को मैं चाहूंगा, चूंकि 28 को बहुत सारे लोग चले जा रहे हैं, जो मैम है मैम भी नहीं रह पाएगी, बहुत सारे लोग नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप सबके लिए 2 दिन का ही रखा हूँ, क्योंकि सब कोई व्यस्त है अपने अपने काम में। तो अगर कहीं अप्लाई है तो 2 दिन का जरूर छुट्टी ले लिया जाए, 27 और 28। इतनी योगदान मैं आप सबसे चाहता हूँ। साइट सीइंग के साथ ग्रुप फोटो वगैरह सब होगा और ये कंप्लीट हो जाएगी हमारा ये कॉन्फ्रेंस। तो ये एक्चुअली हुआ कैसे, कहाँ पे होगी? तो साइंस सेंटर ऑडिटोरियम पटना गांधी मैदान के पास है, तो 27 और 28 को होगी। और 29 को मैंने बता दिया, नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा। और इसका प्रोसेसिंग क्या है, कैसे कोई कर सकता है? जैसे आप सब मैं स्पष्ट में बता दे रहा हूँ कि अवार्ड के लिए, सम्मान के लिए इसमें किसी से कोई अमाउंट की डिमांड नहीं की गई है। और कोई करता है तो आप हमको जरूर इन्फॉर्म करें कि अवार्ड लेने के लिए पैसे मांगी जा रही है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये शुद्ध रूप से आपके कार्यों को सम्मानित किया जा रहा है, इनकरेज, ये हम गौरवान्वित हो रहे हैं कि आपको सम्मानित कर रहे हैं आपके कार्यों के लिए। तो उसके लिए कोई फी नहीं है, लेकिन 3 दिन अगर कोई रहता है, उनको रहने खाने पीने को व्यवस्था कराना है, तो उसके लिए भी चार्जेज एक्चुअली $130 है नॉर्मली। अभी डेट खत्म हो जा चुके हैं, फिर भी अपने लोगों के लिए $130 ही रखे हैं, ताकि वो लोग दे सके और ज्वाइन कर सके। मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ, विद्यार्थी सब है बहुत सारा, तो उनको बहुत सारा कंसेशन भी हम लोग दे रहे हैं। विद्यार्थी है जिनके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है, तो उन लोगों को हम लोग कंसेशन भी दे रहे हैं, ताकि वो आकर आप सबसे जुड़े, मॉडल देखे, सीखे, ताकि उसके मन में, दिमाग में भी एक सपना आ जाए कि नहीं, हमको बिहार को संवारने में, आगे बढ़ाने में हमको भी अपनी योगदान देना है। ये मैंने बता दिया कल्चर। और थर्ड फर्स्ट डे जो ना, आप अपने पूरा वेशभूषा में आइए, साड़ी में आइए, सूट में आइए, फुल पैंट, कुर्ता पैजामा, जिसमें आपको पसंद है, एकदम कल्चर जो बिहारी जो और बाकी जो राज्यों के हैं, बाकी जो देश के हैं, वे सारे उस कल्चर ड्रेस में आएंगे। सेकेंड फॉर्मल होगा, एक प्रोफेशनल तरीके से एक डिकोरम करते हुए आप सब आएंगे कि लगेगा हम कॉन्फ्रेंस में गए हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। और तो ये होगा थर्ड डे। जितने भी लोग डेलीगेट हैं सबको टी शर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी, वो सारे लोग टी शर्ट में रहेंगे। तो ये एक इसकी खूबसूरती है। और दूसरा कि अवार्ड सेरेमनी में, जिसमें आप एक कैटेगरी में है, कलाम यूथ लीडरशिप अवार्ड में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चिल्ड्रन अवार्ड, जो 18 साल से कम के बच्चे हैं जो एक्सेप्शनल उनका योगदान रहा, उनको दी जाएगी। डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कम से कम 10 साल जिनका कंट्रीब्यूशन रहा सोसाइटी के, उनको दी जाएगी। विजनरी ऑफ इंडिया, डॉक्टर कलाम विजनरी ऑफ इंडिया अवार्ड अपने इंडियन डेलीगेट के लिए है। बेस्ट स्पीकर मैंने बता दिया, बेस्ट एम्बेसडर। और प्लांटेशन, आप सब एक काम करें, आपके पास मैसेज भी गया होगा, फोन भी गया होगा, एक प्लांटेशन करते हुए, बहुत सारे लोगों ने शेयर भी कर दिया है, प्लांटेशन करते हुए पिक्चर देते कि इसको अवेयर करना है और पॉजिटिविटी स्प्रिट अप करना है।
और ये आपका पटना यूथ डायलॉग है, जो यूथ पॉलिसी का निर्माण करना है, वो आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दी गई है। अब आपकी योगदान उसमें अहम है। आप सब मिलके प्रिपेयर हो जाए कि हमको इसमें योगदान करनी है। वैलिडेटरी सेशन होगी। थैंक यू सो मच। और बस मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में आपके द्वारा अगर कोई यूथ को आप कहते हैं कि हाँ डेलीगेट के रूप में आए, ये भी एक सहयोग होगी इस कार्यक्रम को। कहीं से कोई अभी सहयोग नहीं है, फंडिंग का मैं स्पष्ट बता देता हूँ, कोई फंड नहीं है। जो लोग हैं हमारे मेंबर लोग दे रहे हैं, लेकिन आपके तरफ से अगर कोई मेंबर अगर सक्षम है, आप उनको ज्वाइन करवा सकते हैं, तो ये भी एक सहयोग होगी आप लोगों की तरफ से। ये कोई फाउंडेशन नहीं है, आप बस सहयोग के लिए मैं बोल रहा हूँ। अगर ऐसा कोई लगता है कि हाँ इसको अगर मंच मिल जाए तो बहुत बेहतर कर सकता है, बिल्कुल रेफर कर सकते हैं। तो इस तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनानी है, और इसको बहुत ही मैं कहता हूँ कि कलाम जी को जो ट्रिब्यूट करना है, श्रद्धांजलि देना है, आपके कार्यों से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है जो इस कार्यक्रम में हम लोग करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। और मैं आशा करता हूँ कि हम सब तुरंत फिजिकली मिलेंगे और पूरी तैयारी के साथ मिलेंगे, मेंटली फिजिकली तैयार होकर मिलेंगे और बहुत ही बेहतर करेंगे। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू शिखर। All right, thank you very much, Manasa. Now, I would like to take some questions so that the discussion must be in very positive way and very productive way. So, ladies and gentlemen, can you have your question at this moment? मेरे पास एक क्वेश्चन है सिकेन। Okay. Can I? Yeah, please go ahead. Can I? हाँ, सबसे पहले सिकेन थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत सालों बाद हम मिल रहे हैं, सरप्राइजिंग। जैसे कि आपको मुझे बहुत कम समय मुझे मिला है, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। इतने शब्दों में कहूंगी कि वापस से मैं क्या, मुझे लगता है बाकी जितने लोग सिकेन को जानते होंगे, मुन्ना जी को जानते होंगे, सभी लोग उतने ही एनर्जी के साथ वापस से आ गए होंगे, क्योंकि कई सालों से सिकेन नहीं है बिहार में। तो बिहार थोड़ा सा होता ना, एक धीमा धीमा चल रहा था। अब वापस से सिकेन आए हैं और फिर से वही एनर्जी, फिर से वही एक्टिवनेस। तो आई एम सो हैप्पी। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुन्ना जी के माध्यम से कहीं ना कहीं कनेक्ट हुए। सिकेन जी को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, वो भी मुझे जानते हैं, और काम की वजह से जिस फील्ड में वो है, वो बेस्ट पर्सन है मेरे ख्याल से मुन्ना जी। क्योंकि ये जो हमारा जो मीटिंग रखा गया है, वो टॉपिक कुछ औरत में बहुत नहीं बोलूंगी मैं। एक छोटा सा बात, मेरी एक सवाल है, जो आप लोगों ने जो टॉपिक रखा है और एक जो बात कही कि एक डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, मैं ये समझना चाह रही थी कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा आइडिया है कि डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि सिकेन जानते हैं मैं स्लम एरिया के बच्चों के लिए काम करती हूँ, एज वेल एज रेप विक्टिम्स के लिए काम करती हूँ, जो कि कहीं ना कहीं नीड केयर प्रोटेक्शन वाली बच्चियां होती हैं, बच्चियां होती हैं। और एक होते हैं जो बच्चे एक्यूज होते हैं, जिसको हम जुवेनाइल बोलते हैं कानूनी भाषा में। समस्या यह है कि अगर मैंने डॉक्यूमेंटेशन रखा, चूंकि आप लोगों ने कहा कि गवर्नमेंट तक ये बातें जाएंगी, तो मेरा जो प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ जो मैं काम कर रही हूँ उसकी बात मैं नहीं रखूंगी, इसके अलावा भी मैं ये रखना चाहूंगी कि जो समस्याएं हैं, जो मेरे साथ जो समस्या है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सरकार पे प्रहार है, एक तरह से देखा जाए तो। क्योंकि मैं मानती हूँ कि ग्राउंड लेवल पे मैंने ये समझा है कि काम जो है ज्यादातर सरकारी संस्थाओं में, सरकारी जो दफ्तरें हैं, वहां पे कागजों में काम होता है। ग्राउंड लेवल पे काम करने में बहुत समस्याएं आती है। तो जो बच्चे क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उनके अवेयरनेस के लिए अगर मैं अपनी बात रख सकती हूँ डॉक्यूमेंटेशन में, या फिर जो रेप विक्टिम्स है जिनको कंपेंसेशन मिलना चाहिए, उनके लिए क्या मैं इस डॉक्यूमेंटेशन में बात रख सकती हूँ, या मुझे फिर एडिट करके रखना होगा, ये मैं जानना चाह रही थी। Sikan, can I say something here? Yeah, please, ma'am. Okay. Yeah, I really appreciate that question and your observation also in that particular area, because for the last 1 week, I am actually working I'm involved in a workshop, and we are working for the boys, the juvenile, in the juvenile observation home. We are organizing a workshop, 5 days workshop, and I'm also involved in that. And yes, you are right. Whatever we find when we are interacting with these people, when we interact with this innocent, I call them innocent because, they themselves are not aware of what they're doing sometimes. It is the environment which is responsible. It is the parental, the background and everything else. So many factors are responsible for the crimes that they are ultimately committing. We ourselves also are responsible. So if we think we are responsible, if we think the education sector is responsible, the society is responsible, then what can be done?
what can be done to improve the situation? It is our duty to point it out to the government. Yes, we can definitely do that. You can document that. You can come up with your own ideas and suggestions. And the government will have to listen to it. That's for sure. इस क्वेश्चन से you, मेरे thank एक you. आंसर भी याद आ गया और एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूंगा। अभी बीच में जब लॉकडाउन हुआ तो तमाम सरकारी स्कूल को बंद कर दिया गया। मैंने देखा कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो जब मैं बिहार पहुंचा उस बीच, तो मैंने ग्राउंड स्टोरी लेना शुरू किया। मैं उन बच्चों से मिला कि भाई आप पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो मालूम चला कि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो जब मैंने पूरा फाइल तैयार किया और जब मैं गवर्नमेंट को जिस दिन लिखा कि आपके टीचर्स कर क्या रहे हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं, उन्होंने लेटर इशू किया। बड़ा प्राउड फील हुआ कि उन टीचर्स को जाना पड़ा, इवन गांव में घरों तक पहुंचना पड़ा। ये वैशाली की स्टोरी है। तो मुझे लगता है कि जितने भी आइडियाज हमारे जहन में आता है, गवर्नमेंट को महज 1, 2, 3 दिन लगेगा। अगर हमारी नीयत अगर अच्छी है, हमारी इंटेंशन अगर बोल्ड है, तो डेफिनेटली Positive है, bold है. Yeah, right. They do. They are always willing to listen to us. Remember, you know, you need to be seen, you need to be heard. Because I remember we had some problem amongst the Tea community people. So when I went for a conference in Leeds University, they had invited me. They had invited a minister from Assam too. So in that conference, I made a presentation and the minister came to know that, yes, these kind of problem exists there. And he could not deny it because I was working in the grassroots level. I knew the situation better than him. And he said, later on, he said, I thank you for pointing out that to us. You people need to work with us to point out to us what needs to be done to bring about positive transformation. So it is our duty, it is our responsibility to do that. Point. और मैं चाहूंगा One more thing, I have to, can I? जो या Oh, sorry. क्या मैं एक इंसिडेंट, चूंकि आपके ने भी एक कहानी बताई, एक आपने जो झेला वो बताया कि आया जब मैम ने भी बताया, मैं एक इंसिडेंट शेयर करूंगी जो अभी हाल में हुआ है। वैशाली की बात है, गरौल जो ब्लॉक है वहां की बात है। एक गैंगरेप होती है, विक्टिम है, उसके साथ गैंगरेप होता है। थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होता है। थाने में एफआईआर बहुत मुश्किल से दर्ज होता है और एफआईआर ये दर्ज होता है कि लड़की जो है किसी लड़के के साथ भाग गई है। जब मेडिकल कराया जाता है तो ये पता चलता है कि उसके साथ गैंगरेप किया गया है लगातार 10 दिनों तक। गरौल की घटना है, विद इन दिस 1 मंथ के अंदर की बात मैं बता रही, जो मेरे पास केस आया। मेरे साथ समस्या ये हो गई कि थाना जो मेरी हेल्प नहीं कर रहा था। मैं चूंकि ये अभी एक हमने कॉन्फ्रेंस रखा है, बहुत सारे हैं, तो ये सजेशन करना चाहूंगा कि उसमें मेरे साथ क्या क्या समस्या हुई। अगर मुझे यूथ क्लब के जो ग्रुप है आज मैं उस वक्त होती तो शायद कहीं ना कहीं मेरी हेल्प कर पाते, आप सभी लोग मिलके शायद मेरी हेल्प कर पाते। मेरी समस्या ये हुई कि उन्होंने थाना में केस दर्ज नहीं किया, और किया भी तो भागने का केस दर्ज किया, बट मेडिकल में आया कि गैंगरेप उसके साथ हुआ है। अब समस्या क्या आ गई कि गैंगरेप हुआ तो है, बट मेडिकल के आधार पे थाना से लेके केस को कन्वर्ट कराना पॉक्सो में, क्योंकि पॉक्सो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत एक बहुत मजबूत ऐसा एक्ट है जिसमें जो है एक्यूज को सजा मिलती है पॉक्सो के तहत। तो पॉक्सो में हमें कन्वर्ट कराना, अब इसके लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ी, थाना से लड़ना। मीडिया वालों को अगर काश सिकेन उस वक्त होते तो शायद मेरी हेल्प कर पाते। अगर मीडिया तक ये बात आती कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है तो शायद ये केस दर्ज होता रेप का, ना कि भागने का केस दर्ज होता। फिर भी हमने बहुत कोशिश की, बहुत सारे चैनल्स वालों को मैंने डिस्कशन किया कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, कम से कम न्यूज में आए तो ये बात हो सके, बट ये हुआ नहीं। हमने एनसीपीसीआर को लेटर लिखा, हमने सीडब्ल्यूसी जो होता है हर जिले में एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, उस कमेटी को हमने लेटर लिखा, उन्होंने भी कोई हमें हेल्प नहीं करी। बट चूंकि मैंने लॉ पढ़ा है, बहुत सारे हमने लॉयर्स के साथ मिलकर ये बात रखी और फाइनली केस जो है अभी का स्टेज ये है कि पॉक्सो में केस कन्वर्ट हो गया है। अब दूसरी समस्या हमारे साथ ये है कि कागजों के पे तो हमने पॉक्सो कर दिया, अब उसको विक्टिम कंपेंसेशन जो 10 लाख रुपए उस बच्ची को मिलना चाहिए, वहां तक हमारा एक सफर है। अगर ये जो हम लोगों ने चैनल बनाया, चूंकि हम डॉक्यूमेंटेशन कहेंगे, आपने बात रखी, बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या ये नहीं हो सकता कि आफ्टर दिस इवेंट, इस इवेंट के बाद एक ग्रुप तैयार हो जो जिस जिले में जिस व्यक्ति को, जो एक्टिविस्ट है, जिसको जो समस्या हो रही है काम करने में, जैसे मुझे समस्या हो रही थी रेप विक्टिम को काम को कैसे हम आगे बढ़ा सके, मैं अकेले लड़ रही थी, एकला चलोरे हो रहा था मेरे साथ। अगर ये ग्रुप एक तैयार होता जिसमें जिस जिले में जिसको जो समस्या हो रही है, अगर उसमें कोई भी हम इनिशिएट कर सके, कोई भी हेल्प हम कर सके, तो मुझे लगता है कि वो सफर थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना
आसान हो जाएगा हम सबों के लिए। क्या ये पॉसिबल है? Definitely, Sarita, why not? Sarita, why not? Sarita, why not? That is why I said that all of Okay. you are coming together. All of you are coming together. You need to club your ideas together. You need to support one another. And many heads are better than one. All of you are going to work forward. It is not just this conference. We are working for the society. We are working for the society, and it should be sustainable. It should be a sustainable effort, not a one-day process. It should be sustainable. We are all with you. We are all with you. Don't worry. Okay. यस Okay. चलिए मुझे लगता है कि हम लोगों ने अगर किसी के पास और कोई सवाल हो, जैसा सिका सर ने बोला, तो बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आया चुपे चुपे निकल गए और बाद में अफसोस है कि काश हम भी बोल देते हैं। इसलिए आप लोग भी अपना बात रख सकते हैं। 10 मिनट हमारे पास और है। I'm sorry for taking so much of time. I'm really, really sorry. मैम आप पे ही एक कार्यक्रम था ही एक्चुअली। क्या बात करती है। बाकी लोग मिनहाज जी, सुनील जी, नितेंद्र जी, सारे लोग वोकल है, मुझे पता है, लेकिन चूंकि अब सारी बातें ही कह दी गई है, तो कुछ अगर सवाल मन में हो तो बिल्कुल बता सकते हैं, बोल सकते हैं। कंचन जी, सुप्रिया, पंचदेव सर, अबो सर, रोशन सर, अगर कुछ भी इनपुट देना हो दीजिए। मिनहाज सर, मिनहाज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, अनम्यूट करके बोलिए। हमारे पास मात्र 7 मिनट है। जय हिंद सर। सभी साथियों को मेरा सलाम। और जैसा कि अभी सरिता मैम ने बोला, मैम मैं खगड़िया से मिनहाज भारती बोल रहा हूँ। आम आदमी गरीब पुकार हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है जो भी लोकल इश्यूज होते हैं उस इश्यूज पे ये लोग आवाज उठाते हैं। हम लोग फॉर एग्जांपल अगर लाइट का इशू हो मिनहाज जी, मैं इशू इंटरप्ट करना चाहूंगा। आपके कार्यों के बारे में मैं बता दिया हूँ, जब ऑफलाइन मिले तो फिर चर्चा करेंगे। अभी कुछ सवाल है, सवाल पूछिए। जी जी, वैसा सवाल नहीं है सर। वैसे जो सरिता मैम ने अपनी बात रखी मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ मिल करके काम करूँ। जी जी जी, थैंक यू सो मच। एनीवन, थैंक यू। कोई? हाय मुन्ना जी। वो बोल रहा हूँ मुन्ना जी। जी बस एक सवाल है मेरा। वो जो वृक्षारोपण के बारे में बोल रहे थे ना, मतलब वृक्ष रोपना है, वो मुझे भी उसका मैसेज आया था। मतलब वो कब तक कर देना है लास्ट डेट, तो थोड़ा वही आपसे जानना था। आप इससे पहले कर देंगे तो हमको सहूलियत होगा उसका एक ये बनाने, पोस्टर बनाने में, ताकि प्रेजेंट करना है मुझे ये प्री कॉन्फ्रेंस एक्टिविटी के रूप में। और सारा ये जो भी आपका एक्टिविटी हो रहा है सारा डॉक्यूमेंटेशन में जाएगी। कि आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट है, वीडियो है, ये सब जाएंगे। तो आप 20 से पहले कर दीजिए, कोई दिक्कत। 20 से पहले, ओके ठीक है। थैंक यू थैंक यू। मात्र 5 मिनट हमारे पास है। कंचन जी, आपके पास कोई सवाल हो तो बोलिए। सुनील जी कुछ पूछना है बोलिए। रोशन सर, और एक और चीज मैं बता देता हूँ, समाज में थोड़ा सा एक जो आया है मेरे पास कि बहुत सारे लोग जो ने इसका अपोज करना शुरू कर दिया इस कार्यक्रम का। पटना में लग रहा है कि हाँ मुन्ना जी पैसा निकाल रहे हैं अवार्ड देते करके, अवार्ड देने को लेकर के। तो मैं, अगर ऐसा कुछ आता है तो आप लोग अपने स्तर से भी समझाने का प्रयास करें कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं स्पष्ट में बता दूं, 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस के लिए जो डेलीगेट या स्पीकर के रूप में आएंगे उनके लिए है 10,000 रुपया। मैं स्पष्ट में बता दे रहा हूँ, अवार्ड के लिए किसी से भी 1 रुपया की डिमांड नहीं की गई है। ये चूंकि अवार्ड दे करके हम खुद अवार्डित महसूस कर पा रहे हैं, आप जैसे लोगों को सम्मानित करके मैं खुद सम्मानित महसूस कर पा रहा हूँ। ये मेरे लिए गौरव की बात है। पैसा का लेन देकर इसका अपमान नहीं करना चाहते हैं। इसलिए ऐसा बात अगर आती है तो जरूर अपोज करें और बताएं और क्या मकसद है इसका। तो कुछ लोगों के पेट में गुरगुरी हो रही है एक्चुअली, तो फिर भी आप सबका पूरा सहयोग चाहिए ताकि इस कार्यक्रम को इतना बेहतर बना सके कि आने वाले समय में इसकी जो आउटपुट आए डॉक्यूमेंट के रूप में, गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करे और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी फॉलो अप करके काम करे। यानी एक फ्रेमवर्क देना है। डॉक्टर कलाम सर ने विजन 2020 करके एक जो बुक लिखा था, उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया था कि अपने भारत देश को कैसे विकसित राष्ट्र बना सकते हैं। तो उन्होंने जो एक फ्रेमवर्क दिया था, आज हम लोगों को बनाना है उसी पे आधारित एकदम इजी वे में, ताकि
हर एक कोई एक्सेप्ट करे और सस्टेनेबल मॉडल डेवलप करके और काम करके अपने अपने क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम लोग मजबूती प्रदान करें अपने क्षेत्रों को, अपने एरिया को और ओवरऑल बिहार को। धन्यवाद। कोई सवाल है तो बोलने के लिए कहिए तो मैं बोलते रह जाऊंगा। मैम भी लेक्चरर है, यहाँ पे जर्नलिस्ट है, बोलने में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप लोग ही बोलिए, सिर्फ काम ही कीजिएगा। जी सर, मुन्ना सर, सबसे पहले मुन्ना सर को मैं धन्यवाद देता हूं और सारे टीम ख्वाब फाउंडेशन को मैं धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूं कि इस तरह का जो मैंने युवाओं के लिए एक मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार आपने किया है। मैं सर सबसे पहले एक सवाल करता हूं कि जो केला का बागान है, इसके वेस्टेज जो मटेरियल है, आज जो प्लास्टिक का जो कचरा जो नजर आ रहा है, अगर इस कचरा आज प्लास्टिक तो मैंने पाबंदी पे है, आज यही केला के बागान के नवगछिया वगैरह में केला की खेती होती है, वही वेस्टेज चीज को अगर कोई कन्वर्ट करके थैला बनाया जाए ताकि इससे युवाओं में रोजगार आएगा और नवाचार भी आ सकता है। मैंने जो कलाम साहब का विजन था और बिल्कुल इसको डॉक्यूमेंटेशन में भी शामिल की जाएगी ताकि आपके जो आइडिया है निश्चित रूप से उसमें शामिल की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई 2 मिनट हमारे पास और है आपके लिए। जी, और एक सवाल और है मुन्ना सर कि जो मैं हैंडीकेप पे जो काम कर रहा हूँ, मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद का हम बिहार का प्रेसिडेंट है, तो मैं प्रत्येक गांव में प्रत्येक जिला में गया हूँ। एक हैंडीकेप व्यक्ति मेडिकल में जा के दर दर भटकते रहता है, बीडीओ साहब तक, डीएम साहब तक, क्यों नहीं एक ऐसा प्रावधान किया जाए ताकि हैंडीकेप को जाना नहीं पड़े, ताकि जितना भी पदाधिकारी हो, डॉक्टर हो, इसके घर जाने की कोशिश करें। इसीलिए तो हम लोग पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल यही इनपुट चाहिए। हम लोग पूरा एकदम डिस्कस करेंगे। आपके पास एक फॉर्म भी हम लोग शेयर करेंगे, कुछ सवाल और कुछ आपका इनपुट लेना चाहेंगे तो 1-2 दिन में तैयार होकर के आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर, बहुत अच्छा आपने बताया और इस पर काम करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच। और किन्हीं के पास कुछ हो इसी ढंग से तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रोशन सर, आप साइलेंटली मैसेज कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये सभी सहयोग है। सर एक सवाल और आता है कि बापू की कर्म भूमि मोतिहारी चंपारण में जब हम गए थे पिछले बार, एक शिविर था आजादी का अमृत महोत्सव और गांधी। जब मैंने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति से मैंने सवाल किया कि आई माता जी, आई चाची जी, बताइए आपका योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, तो इनका एक सवाल मैंने सरल सा जवाब आया, एकदम पूरा झकझोर देने वाली की बात था। उन्होंने जो जवाब दिया तो मुन्ना सर इसको संज्ञान में लिया जाए। बोलते हैं क्या कि सब पढ़हलकन का दोषी। क्या ठीक है, एकदम अच्छा है, एकदम ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। हाँ, हमको लगा कि हम भी पढ़े लिखे हैं। आई महिला बोलती है कि जो दाम पढ़ी लिखी नहीं है, वो बोलती है कि सब योजना में जो नहीं आ रहा है इसका दोषी सब पढ़हलकन आला अधिकारी है। हमको तो लगा तो एकदम गांधी जी का तीसरा तमाचा बदल गया हम लोग का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर। लास्ट कमेंट मैम और चिकन सर, 30 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। लास्ट कमेंट। So I request all of you who have been present here today and who will get the message that whatever work you are doing, you can actually prepare some kind of documentation from home itself and take it forward to the conference. Whatever extra suggestions you have, whatever new ideas you have, you can start documenting it from home itself. Just so that when you go for the panel discussion, it will be easier for you to immediately express your own work. You can talk about your idea, you can talk about your suggestions. ठीक है सर, 5 सेकंड है आपके पास। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग अपना कीमती वक्त हमसे साझा किए, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठेगा कि जब पटना यूथ